क्लास 8 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को लेसन 14 परहेज के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ, पहले इसकी वर्ड मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डिजीज, इन इलनेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। सिम्टम्स, a change in your body or mind that shows that you are not healthy. Anxiety, the state of feeling nervous or worried that something bad is going to happen. Effort, to have enough money or time to able to buy or do something. Outburst, a sudden strong expression of an emotion. Infections, an infection disease can be passed easily from one person to another, especially through the air that we breathe. Anticipate, to expect something. Monument, a building, column, statue, etc. Building to remind people of a famous person or event. Documentary, a film or a radio or a TV program giving facts about something. Museum, a building in which objects or artistic, culture, historical, or scientific interest or kept and shown to public. Authentic, known to be real and genuine and not a copy. Victimize, to make somebody suffer unfairly because you do not like them. Interference, the act of interfering. Continent, one of the large land mass of Earth such as Asia, Europe, Africa, etc. Venture, a business project or activity, especially one that involving taking risk. Motto, a short sentence or phrase that express the aims and beliefs of a person. Pretend, to behave a particular way in order to make other people believe something that is not true. Familiar, we known to you, often see or hear that therefore easy to recognize. Tempting, something that is attractive and makes people want to have it. Hesitate, to be slow to speak or act because you feel uncertain or nervous. Brochure, a colorful painted material containing picture and information about something. Dormitory, a room for several people to sleep in, especially in school or other institution. Junk, things that are considered useless or a little value. Tendency, change in behaviors. Leave, travel concession scheme which allow work to travel. Interact, to talk with one another. Reliable, that which you be trusted. Prescribe, treatment suggested by an expert. कुछ हिंदी में भी देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। डिजीज है, डिजीज मीन्स बीमारी। सिम्टम, सिम्टम मीन्स लक्षण होता है। एनेक्सिटी मीन्स चिंता। एफोर्ड मीन्स देना या खरीद सकना। आउटबर्स्ट मीन्स फूट पड़ना या विस्फोट। इन्फेक्शंस मीन्स संक्रमण। एंटीसिपेट मीन्स पहले से आशा करना। मॉन्यूमेंट मीन्स इमारत या मकबरा। डॉक्यूमेंट्री मीन्स लिखित संदेशप्रद फिल्म। म्यूजियम मीन्स अजायब घर। अथेंटिक मीन्स सही। विक्टिमाइज मीन्स शिकार बनना, धोखा देना। और दूसरा है इंटरफेरेंस मीन्स बाधा पहुंचाना।
कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप या बड़ा देश। वेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। मोटो मीन्स कहावत या सिद्धांत। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना। फैमिलियर मीन्स परिचित। टेम्पटिंग मीन्स मोहक ललचाना। हेजिटेट मीन्स घबराहट। ब्रोच्योर मीन्स रंगीन छोटी पुस्तक। डॉर्मेट्री मीन्स सोने का बड़ा कमरा विशाल सेनागर। जंग मीन्स कूड़ा करकट। टेंडेंसी मीन्स व्यवहार। लीव ट्रेवल कंसेशन मीन्स यात्रा के लिए अनुमति की योजना। इंटरेक्ट मीन्स आपस में वार्तालाप। रिलिएबल मीन्स विश्वसनीय या भरोसेमंद। प्रेस्क्राइब मीन्स निर्धारित या नुस्खा बताना। चलिए थोड़ा सा हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं लेसन को। सो अ न्यू एज डिजीज दैट हैज बीन स्प्रेड फास्ट गोज बाय द नेम ट्रेविलिया। The root cause for this modern day disease is travel bug. The disease particularly has a tendency to affect wealthy people. The symptoms of the disease are restlessness in early spring and just after winter. People become eager for information about tourist place and anxiously contact travel agent and start collecting brochures during this phase. The final session outburst of the disease can be seen around the time of summer vacation. हिंदी देखते जरा क्या है। नए युग की एक बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही है जिसका नाम है ट्रेविलिया। पर्यटन यात्रा आधुनिक समय की बीमारी का मूल कारण है भ्रमण की भूख। यह बीमारी विशेष रूप से धनी व्यक्तियों की मानसिकता को प्रभावित करती है। इस बीमारी के लक्षण बसंत के शुरुआत में और ठीक ठंड के बाद गतिशील होते हैं। लोग पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी को उत्सुक हो जाते हैं तथा चिंता पूर्वक यात्रा के दलाल से संपर्क करते हैं और इस दिशा में रंगीन सचित्र जानकारी युक्त छोटी किताबें एकत्र करना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी का अंतिम मौसमी विस्फोट ग्रीष्म अवकाश के दौरान दिखाई देता है। तब दुनिया लगती है सारी भागने, कोई उधर घूमता है कोई इधर घूमता है। चलो देखते हैं आगे क्या है। Those affected by travel bugs decided to board a train, bus or plane or a foreign place like thousands of other affected by the disease. People travel not because they are necessarily interested or attracted by a place, but more because they cannot stop the bug. Even within the country, one can frequently observe the side effects of the disease. What makes person want to travel? People from different countries have different purpose in traveling. चलिए हिंदी भी देखते हैं इसकी क्या है। वे लोग जो भ्रमण यात्रा की भूख द्वारा पीड़ित होते हैं, बीमारी से ग्रसित अन्य हजारों लोगों के समान रेल, बस या वायुयान पर विदेशों में जाने का निश्चय करते हैं। ये लोग यात्रा नहीं करते क्योंकि वे अनिवार्यतः रुचि लेते हैं या स्थान में आकर्षित होते हैं, किंतु कुछ और कि वे अपनी भूख शौक को नहीं रोक सकते। यहाँ तक देश के अंदर कोई भी इस बीमारी के बाहरी प्रभाव को बारंबार देख सकता है। क्या है जो एक व्यक्ति को यात्रा करवाना चाहता है? विभिन्न देशों के लोगों विभिन्न उद्देश्यों से यात्रा करते हैं। Americans are fond to taking pictures of themselves at place of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal Garden or beneath the arch of the Buldhulia or with a chadar in their hands in front of the Dargah of Khwaja Muinuddin Chishti. On wonder of this urge and collected documentary evidence of their travels. हिंदी देखते हैं। अमेरिकी स्वयं ही विभिन्न ऐतिहासिक रुचिकर स्थानों के चित्र लेने के शौकीन होते हैं, जैसे ताजमहल और मुगल गार्डन का भूल भुलैया, गलियारे के नीचे या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सामने अपने हाथ में चादर लिए। एक अनोखी बात उनकी उत्सुकता की
कि वे अपनी यात्रा की सचित्र छोटी संदेश युक्त फिल्म साक्ष्य के रूप में संग्रह करके रखते हैं। नेक्स्ट है जर्मन्स ऑन द अदर हैंड आर ईगर टू चेक द authenticity of details provided in the guidebook. They are especially need to check whether the location of Jantar Mantar is actually in Delhi or elsewhere. They also check eagerly whether the old man who walks out of the big clock is the Sagar Jung Museum actually does so when the clock strike travels 12. The German national makes sure to tick off the details in his guidebook when he is satisfied that he has not been decided. डिसीव्ड है ये, डिसाइडेड नहीं, डिसीव्ड। हिंदी देखते हैं जरा क्या है इसकी। दूसरी ओर जर्मनवासी निर्देशिका पुस्तक में दिए गए वर्णन यानी जानकारी को सही रूप को जांच करने यानी मिलने के उत्सुक होते हैं। वे विशेष रूप से सूक्ष्मता से जानकारी लेते हैं कि क्या जंतर मंतर वास्तव में दिल्ली में स्थित है या कहीं और। वे यह भी उत्सुकता से जांच करते हैं कि वृद्ध व्यक्ति सालार जंग के अजायब घर में बड़ी घड़ी से चलकर बाहर आता है। वास्तव में ऐसा लगता है जब घड़ी में 12 बजता है। जर्मनवासी जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें धोखा नहीं दिया गया है, तब अपने निर्देश पुस्तिका के जानकारी में सही निशान सुनिश्चित करता है। There is another way that this disease has made its strange appearance. Most of the urban population travel nowadays because they have caught the information from other in the office. If a colleague is in the office has applied for a label travel concession, the virus is sure to spread to others. मीन्स क्या है, यहाँ एक अन्य तरीका है जिससे यह बीमारी अपना विचित्र रूप बना दी है। अधिकांश शहरी लोग आजकल भ्रमण करते हैं क्योंकि वे दफ्तर में अन्य लोगों के संक्रमण से जकड़े होते हैं। यदि दफ्तर में साथीगण यात्रा में छूट के लिए अवकाश हेतु आवेदन किए हैं तो निश्चित रूप से यह विषाणु अन्य लोगों में भी फैल जाता है और दूसरे लोग भी यात्रा करने की सोचने लगते हैं। चलिए, many Indians travel in group or venture out in joint families. They book a hotel or dormitory where the staff is of their own region. They eat their own regional dishes and sometimes even cook themselves in order to save money. Another thing that is observed in that people who normally don't interact much with neighbors and particular affectionate with familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as जम्मू और अंडमान। जम्मू एंड अंडमान है, वहां की बात कर रही है। चलिए देखते हैं। अनेक भारतीय समूहों में यात्रा करते हैं या साहस से संयुक्त परिवार के साथ वे होटल सुरक्षित करते हैं या बड़ा कमरा जहां लोग उनके अपने क्षेत्र के हों। वे अपने क्षेत्रीय व्यंजन खाते हैं और कभी कभी रुपया बचाने को स्वयं ही भोजन पकाते हैं। एक अन्य बात जो देखी गई है कि लोगों को सामान्यतः पड़ोसियों के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखते। निश्चित रूप से वे मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक उनसे मिलते हैं जबकि उनकी मुलाकात कहीं दूर जैसे जम्मू या अंडमान में हो जाए। Research in still require on two things that could effectively work out to be the cure of travelia. Firstly, the discovery of one's neighbors are interesting people, and secondly, that you do not have to travel too far to satisfy your curiosity. Once the answer to these questions are found, reliability treatment for the same can be prescribed.
दो चीजों पर अब भी शोध बाकी है जो कि प्रभावी रूप से ट्रेविलिया के इलाज के लिए कार्य कर सके। पहली खोज की अपना पड़ोसी एक रुचिकर व्यक्ति हो और दूसरा कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए तुम बहुत अधिक दूर भ्रमण ना करो। एक बार इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, इस प्रकार की बीमारी के लिए भरोसेमंद निर्धारित नुस्खा उपचार मिल सकता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसरों की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेविलिया? क्या है ट्रेविलिया? ट्रेविलिया क्या है? तो आंसर है यहाँ, ट्रेविलिया इज अ न्यू एज मॉडर्न डिजीज ट्रेवल बग मीन्स द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गो ऑन टूर स्पेशली ड्यूरिंग समर वेकेशन। क्या हुआ मतलब इसका? ट्रेविलिया नए युग की एक आधुनिक बीमारी भ्रमण की भूख है, अर्थात सफर पर्यटन पर जाने की तीव्र इच्छा, विशेष रूप से ग्रीष्म अवकाश के समय। उस समय तो एकदम जान आ जाती है सबके अंदर, चलो रे भागो कहीं घूम के आते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, हु फॉल्स प्रेली टू इट? कौन इनके शिकार होते हैं ये बताना है। सो आंसर इज हियर, पर्टिकुलरली अर्बन वेल्थी पीपल फॉल्स प्रे टू इट। खास तौर से शहरी धनी लोग इसके शिकार होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। खर्च कहाँ करें? तो ट्रेवलिंग में खर्च करते हैं, इधर उधर घूम करके। नंबर थर्ड, हु डू पीपल फील एनेक्सियस टू कॉन्टेक्ट ट्रेवल एजेंट? लोग यात्रा के दलालों से संपर्क को लेकर चिंतित महसूस क्यों करते हैं? सो आंसर है, पीपल फील एनेक्सियस टू कॉन्टेक्ट ट्रेवल एजेंट बिकॉज दे become eager to get information about tourist places। लोग यात्रा के दलालों से संपर्क को लेकर चिंतन महसूस करते हैं क्योंकि वे पर्यटन स्थानों के बारे में जानकारी के उत्सुक होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नंबर फोर्थ, व्हेन डू वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट? हमें मौसमी विस्फोट कब दिखाई देता है? तो आंसर है बच्चों, we see the seasonal outburst at the time of summer vacation। हमें मौसमी विस्फोट ग्रीष्म अवकाश के समय दिखाई देता है क्योंकि इस समय इतनी भीड़ उमड़ती है जो विस्फोट से कम नहीं होती है, टिकट तक नहीं मिलता है। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स, व्हाट आर दे? दो चीज पर अब भी शोध बाकी है, वे क्या है? सो आंसर इज हियर, रिसर्च दैट इज स्टिल रिक्वायर्ड on two things are, firstly the discovery that one's neighbors are interesting people, and secondly you do not have to travel too far to satisfy your curiosity है ये। सो जो कि दो चीजों पर अब भी बाकी है, पहला खोज कि अपना पड़ोसी एक रुचिकर व्यक्ति हो तथा दूसरा कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए तुम बहुत अधिक दूर भ्रमण न करो। चलिए कुछ और आ गया है, राइट ट्रू फॉल्स। देखते हैं क्या क्या लिखना है बच्चों। पहला फर्स्ट है, द पेशेंट ग्रो रेस्टलेस एंड स्टार्ट रशिंग टू ट्रेवल एजेंट्स, ये ट्रू है आपका। नाउ सेकंड देख लो, ट्रेवलिंग इंक्रीजेस नॉलेज, सो इट इज आल्सो ट्रू है आपका। थर्ड है, ट्रेविलिया इज अ मॉडर्न डिजीज ऑफ द रिच, ये भी आपका ट्रू है। नंबर फोर्थ है, द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इजिली फॉल प्रे टू इट, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो अर्बन वाले होते हैं। नंबर 5, द डिजीज मेंशन इन द लेसन इज नॉट इन्फेक्टियस, ये भी आपका फॉल्स है। नंबर 6 पे देखते हैं, द सीजनल आउटबर्स्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो ये आपका ट्रू है, इसी टाइम तो विस्फोट होता है ये। नंबर 7 की बात कर लो, द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फाउंड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ themselves before place of historical interest, so that one is the false। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग, तो ये है नंबर है यहाँ पे, प्लेसेस और आइडिया है और यहाँ इंफॉर्मेशन देना है आपको। नंबर 1 पे आता है प्लेस इन दिल्ली, तो जंतर मंतर है बच्चों यहाँ। नंबर 2 है आगरा, आगरा में ताजमहल है।
नंबर 3 में है रिलीजियस प्लेस, ये क्या है? यह है दरगाह ऑफ ख्वाजा। और नंबर 4 है म्यूजियम। ये रिलीजियस प्लेस में दो है बच्चों, ध्यान रखना, एक मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, मोइनुद्दीन की चिश्ती, और म्यूजियम में आता है सलर जंग म्यूजियम। सलर जंग म्यूजियम है ये। तो ये चीजें दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए इन सबका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है गिवन आर द नेम ऑफ द डिजीज, कैटेगराइज देम इन द टेबल गिवन बिलो। मलेरिया, कैंसर और पैरालिसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, पेनमिनिया, एड्स, जॉन्डिस, टीबी, पोलियो एंड डायरिया। चलिए देखते हैं। इन्फेक्टिव डिजीज है यहाँ पे और नॉन इन्फेक्टिव डिजीज है यहाँ पे। देखते हैं कौन सा। पहले इन्फेक्टिव डिजीज में देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, पेनोमिनिया, जॉन्डिस, टीबी और डायरिया, ये है इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस में मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, एड्स एंड पोलियो। इस तरह से आपको दोनों को डिवाइड करना था। चलिए आगे है कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसमें अवर इन द स्टाफ मेड अ प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक। तो कलीग आएगा या नेबर आएगा? तो यहाँ पर कलीग आएगा बच्चों, यहाँ पे कलीग भरेंगे आपको। चलिए सेकंड देखते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर अ कॉल्ड एड्स। तो क्या है, डिजीज आएगा या पेनोमिनिया आएगा? तो यहाँ पे डिजीज आएगा बच्चों यहाँ पे। नंबर थर्ड है द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड ताजमहल आर मॉन्यूमेंट है या म्यूजियम है? आपको बताना है इसमें। तो क्या है ये? इट इज द मॉन्यूमेंट, ये है मॉन्यूमेंट। चलिए नंबर 4 देखते हैं। ट्रेविलिया इज अ मॉडर्न डिजीज पीपल लिविंग इन फॉल प्रे टू इट। तो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, आपको बताना है इसमें। सो अर्बन एरिया इज राइट। सो यू कैन राइट यहां अर्बन एरिया। नंबर 5 की बात कर लो। द डिजीज मेंशन इन द लेसन इन्फेक्शियस और सीरियस। तो ये क्या है? इन्फेक्शियस है। ये फर्स्ट वाला ही, हर एक के फर्स्ट वाला ही तो आ रहे हैं आंसर। चलिए कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सब के लिए वन वर्ड देना है। सो पहला है वन हु इज सिक, ही इज अ पेशेंट आएगा। वी कैन गेट इट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। थर्ड है द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स। और नंबर 4 है इट इज अपोजिट ऑफ familiar। और फिफ्थ है a sign of change in our body or mind that shows that you are not healthy। तो चलिए देखिए इनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आंसर है one who is sick, he is a patient। नंबर सेकंड है we can get the information newspaper, radio and TV, that is the information आएगा, ये भरा जाएगा। पहले वाले में पेशेंट मैंने बताया था। थर्ड वाले में देखिए द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, ये है म्यूजियम आपका। नंबर 4 है इट इज द अपोजिट ऑफ फैमिलियर, तो अनफैमिलियर हो जाएगा ये। अनफैमिलियर या स्ट्रेंज बोलते हैं इसको। फिर देखो अ साइन ऑफ चेंज इन आवर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू हैव नॉट हेल्थ, दैट इज द सिम्टम। सिम्टम भरना है आपको यहाँ पे। चलिए ये कुछ दिए हुए हैं आपको। ये कुतुबसर केव है, ये चित्रकूट फॉल है, ये कांगेर वैली है, शेरपुर है, और बमलेश्वरी टेम्पल है, और रामगढ़ पेंटिंग्स है, और भिलाई स्टील प्लांट है, भौरम देव है, सोना खान है, बस्तर मेला है, और केशकाल घाटी है, और मैन पाट है। चलो देखते हैं इनके बारे में क्या बताना है आपको। तो पिक आउट द वर्ड गिवन अबाउट द आस्क योर पार्टनर
क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। ऊपर दिए गए शब्दों में शब्द लो तथा अपने मित्र से प्रश्न पूछो जैसे कि उदाहरण में दिया गया। तो उदाहरण भी देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट है, हैव यू एवर सीन कुतुब सर केव? तो बी में यस आई हैव, और ए में क्या है, व्हेन डिड यू गो देयर? सो बी में आंसर है आई वेंट देयर इन समर वेकेशन। और क्या आ जाएगा, नो आई हैव नॉट, आई वेंट टू उड़ीसा। इस तरह के आंसर आपको देने हैं उसमें से देकर के शब्दों को, जो वर्ड्स दिए हुए हैं। तो चलिए आंसर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आंसर है, फर्स्ट में है। तो हैव यू एवर सीन चित्रकूट फॉल? सो आंसर आएगा नो आई हैव नॉट, आई वेंट टू मैन पार्क। सो सेकंड में है, ए में देखो, हैव यू एवर बीन भिलाई स्टील प्लांट? तो सेकंड में आंसर है इसका यस आई हैव। इसमें देखो, व्हेन डिड यू गो देयर? सो आंसर इज आई वेंट देयर इन विंटर वेकेशन। थर्ड है, आई हैव यू एवर गॉन सिरपुर? तो आंसर इज यस आई हैव। व्हेन डिड यू गो देयर? सो आई वेंट देयर इन विंटर वेकेशन। तो आपको विंटर या समर बताना है। चलिए आगे देखते हैं, मेक योर सेंटेंस फ्रॉम द टेबल। ये टेबल दे रखा, आई वी यू दे ही सी रामू, और यहाँ पर हैव सीन है और हैज सीन है। सिरपुर है, कांगेर वैली है, भौरमदेव है, सोनाखान है, मैनपाट है और चित्रकूट फॉल है। तो इसके आंसर में देख तो क्या आता है। ये आपका आंसर है, फर्स्ट है आई हैव सीन सिरपुर, सेकंड आएगा वी हैव सीन कांगेर वैली, थर्ड है यू हैव सीन भौरमदेव, और फोर्थ आएगा दे हैव सीन सोनाखान, फिफ्थ आ जाएगा ही हैज सीन मैनपाट, सेकंड में सिक्स में आएगा सी हैज सीन चित्रकूट, और सेवन क्या है, रामू है सीन सिरपुर। तो सारे इसमें आ गए आपके। अब ये फिगर दी हुई है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इफ यू हैड अ चांस टू ट्रेवल टू द प्लेस इन द पिक्चर गिवन बिलो, सो आई वुड लाइक टू विजिट एंड डिजर्ट। ये है आई वुड लाइक टू विजिट द डिजर्ट, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द डिजर्ट बिकॉज। तो ये सब चीजें आपको देना है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सो यू कैन सी है, I would like to visit the desert. I would not like to visit the desert because it experiences extremely hot climate almost throughout the year. Dust storms are a common thing and I am allergic to dust, especially यह scarcity of drinking water and continuous रेस्पिरेशन आर अदर फैक्टर्स। तो चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड में ये दिखाया जा रहा है, आई वुड लाइक टू विजिट माउंटेन और आई वुड नॉट लाइक टू विजिट माउंटेन बिकॉज। ये दोनों ही चीजें आपको देना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। सो आंसर इज हियर, आई वुड लाइक टू विजिट द माउंटेन, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द माउंटेन बिकॉज दे present a beautiful landscape and climate is the mountain is very pleasing. I am fond of the cool fresh breeze that keeps blowing there. They are good for health. इसमें मैंने क्या लिया, ये बाद वाला छोड़ देना। इसमें I would not like, अब तो मैं लाइक कर रहा हूँ तो लाइक के लिए लिया गया था, और पिछले वाले में क्या था, इसमें लिया गया था I would not like। तो नॉट लाइक में तो बिकॉज का भी आंसर देना, और लाइक वाले में जो आपको लिए लाइक लग रहा है उसका आंसर देना है। तो दोनों आंसर आपको देने थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, कुछ बीच का आ रहा है। ये देखो, ये बीच पर है बेचारा, तो इसके लिए भी देखते हैं। आई वुड लाइक टू विजिट द बीच, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द बीच बिकॉज। तो चलिए दोनों में से कोई आंसर देना है हमें, तो दे लेते हैं आंसर। सो आई वुड लाइक टू विजिट द बीच, इसी में आंसर देना है, ये नहीं देना है हमें। I would not like to visit the beach, क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया मैंने इसको। So because I love the sunset, sight of sea and its beach, the splashing of wave, the row of coconut trees on the coast and the white sand attract me very much. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये, I would like to visit historical place. I would not like to visit historical places because। तो आंसर देना दोनों में से एक का देना कोई सा। तो हम एक का आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं।
आई वुड लाइक टू विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस, ये नहीं देना है इस वाले को नहीं। आई वुड नॉट लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, सो बिकॉज में देना आंसर। बिकॉज आई एम डीपली interested in history, I am always curious to know the way of life of those people about whom we have read in history books. The monuments always charms me very much. चलिए बच्चों, अब ये देखिए एक रेलवे टिकट को कैसे हम बुक कराते हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो ये क्या है इसमें, लुक एट द रेलवे टाइम टेबल गिवन बिलो। इफ यू हैड टू मेक अ जर्नी फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, यूज द टाइम टेबल टू फिल इन द फॉर्म। ये रेलवे रिजर्वेशन टाइम टेबल दिया हुआ है, ट्रेन बिटवीन अ पेयर ऑफ स्टेशन, दो स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों के नाम दे रखे हैं और इसमें बुकिंग है या नहीं है इन सबको हमें देखना है। तो सबसे पहले ये 2409 नंबर है, इसमें है गोंडवाना एक्सप्रेस है ये, और रायपुर जंक्शन से चलती है, हजरत निजामुद्दीन तक जाती है और 7:40 पर है, सुबह का टाइम है 7:40। और यहाँ डेज ऑफ रन दिखा रखा, कौन कौन से दिन में चलती है, तो मंडे चलती है, ट्यूसडे नहीं चलती है, फिर वेडनेसडे चलती है, थर्सडे चलती है, फ्राइडे चलती है, सैटरडे चलती है, फिर संडे नहीं चलती है। तो 2 दिन नहीं चल रही है बच्चों, ध्यान रखना ये 2 दिन नहीं चल रही है। और इसमें क्या क्लास में कौन सी सीट है कौन सी नहीं है ये सब यहाँ बताई गई है। ऐसे दूसरी ट्रेन का नंबर दिया है 2441 बीएसपी एनडीएलएस राज एक्सप्रेस है, और 2807 सप्ताह एक्सप्रेस दिया हुआ है, और 2823 ये सीजी संपर्क क्रांति है, और 8237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ये, और 8518 है ये विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस है ये। चलिए अब देखते हैं फॉर्म कैसा मिलता है, उसको भरते कैसे हैं। तो ये फॉर्म एक दिया हुआ है, रिजर्वेशन या कैंसिलेशन रिक्वेस्टिंग फॉर्म है ये। तो फॉर्म को भरते कैसे हैं, पहला है ये देखो, इफ यू आर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्लीज टिक इन द बॉक्स। अगर आप डॉक्टर हैं तो इस बॉक्स में टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू कुड बी हेल्प इन एन इमरजेंसी, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो है सेवा इमरजेंसी में कहीं भी ली जा सकती है, उसके लिए होता है। इफ यू आर सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज राइट यस इन द बॉक्स, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस बॉक्स में टिक कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। इफ यू प्लीज कैरी प्रूफ ऑफ एज ड्यूरिंग द जर्नी टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू पैनल चार्जिंग अंडर एक्सटेंड रेलवे रूल्स, मतलब आप अपने साथ उम्र का कोई सर्टिफिकेट लेकर के जाएं जिससे पता चल सके कि आपकी उम्र इतनी है, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर कोई और आइडेंटिटी कार्ड हो गया, उसमें एज आपकी बताती है। तो चलिए देखो ट्रेन का एक फॉर्म है ये, रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसको भरना बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। तो हम एक फॉर्म भर करके दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आता है ट्रेन नंबर या नेम, तो कहाँ से, यहाँ रायपुर से दिल्ली की बात चल रही है, तो मैंने यहाँ भर रखा है 2409 गोंडवाना एक्सप्रेस से जाना चाह रहे हैं। कौन से दिन को जा रहे हैं, तो ये आ गया 25/12/2008। आप इसमें जो भी लिखना चाहें लिख सकते हो, डेट आज की डाल दीजिए बल्कि, या जिस दिन भी आप ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इसमें कौन से क्लास का लेना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ए का है क्लास इसमें, और नंबर ऑफ बर्थ सीट है, क्योंकि मैं अकेले जाना चाह रहा हूँ इसलिए एक ही सीट लगेगी। और कौन से स्टेशन से जाना चाह रहे हैं, रायपुर से है, और ये हजरत निजामुद्दीन के लिए है। तो स्टेशन फ्रॉम रायपुर और टू आ जाएगा हजरत निजामुद्दीन। चलिए इसके बाद बोर्डिंग एट, कहाँ से चढ़ना चाह रहे हैं आप, गाड़ी कहाँ से पकड़ेंगे वहां के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है ये डेस्टिनेशन अलग अलग हो जाते हैं, जैसे आपने टिकट तो रायपुर का लिया लेकिन चढ़ना बिलासपुर से चाह रहे हो तो यहाँ पे बिलासपुर लिखना पड़ेगा फिर आपको। और रिजर्वेशन अप टू कहाँ तक का है, हजरत निजामुद्दीन तक का है। तो ये दोनों तो बच्चों एक ही भरा जाता है हमेशा। चलते हैं अगले फॉर्म का अगला हिस्सा है ये, इसमें सीरियल नंबर देखा, जितने बच्चों के नाम वगैरह जितने लोगों के नाम होते हैं सब देखते। मैंने पहला नाम दे रखा है इसमें अभिषेक, इसकी उम्र जो है 15 साल है और मेल है ये, और स्टूडेंट है ये। और कौन सी बर्थ चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये लोअर बर्थ चाहिए मुझे, क्योंकि नीचे की सीट अच्छी रहती है, बैठने लायक रहती है। इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, या चिल्ड्रन बिलो 5 years फॉर होम टिकट इज नॉट टू बी इशूड, मतलब ऐसे 5 साल से कम बच्चों का कोई है तो उसका नाम दे दीजिए।
और अगर नहीं है तो यहाँ पे नील कर दीजिए। तो मैंने नील कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म का अगला हिस्सा है ये ऑनवर्ड रिटर्निंग जर्नी डिटेल्स, मतलब अगर रिटर्न करना चाह रहे हैं तो यहीं से रिटर्निंग का भी टिकट मिल जाएगा। तो उसने ट्रेन नंबर दिया है या नेम दिया है, तो 8237 है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है। डेट कौन सा है, 2/1/9 में हम आना चाह रहे हैं। इसमें क्लास कौन सा, 2A दे रखा है मैंने। और स्टेशन कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है। और टू कहाँ तक के लिए, रायपुर तक के लिए, टू रायपुर आ जाएगा। और नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो नाम अपना ही दे रहा हूँ मैं, अभिषेक माथुर, या अपना नाम कोई सा भी लिख सकते हो। फुल एड्रेस, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखेंगे, 215 दुर्गा कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिग्नेचर मारने होते हैं तो आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं और डेट डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी अगर कोई है तो ये टेलीफोन नंबर डाल दिए। ये टेलीफोन नंबर बच्चों काल्पनिक है, रियल नंबर नहीं है मेरा। और ये 5/12/8 जिस टाइम आप रिजर्वेशन का उसकी डेट और यहाँ पे टाइम डालना होता है। इतनी चीज करने के बाद रिजर्वेशन काउंटर पे दे दीजिए, वो टिकट आपको बना करके दे देगा। तो ये बहुत ही आवश्यक अंग है जिसका जानना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्टेप्स यूज टू फिल अप द रिजर्वेशन फॉर्म। रिजर्वेशन फॉर्म जो बन रहे थे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप देने हैं। तो आंसर है बच्चों ये, I verified that if the train is which I want to travel on the particular day is available or not. Then if the berth seat is available in second AC, I check the train number from the chart. I ask the counter clerk if I can avail the student concession. I fill my performance of birth and information about my return journey। इतना कुछ करना पड़ता है जो मैंने बता दिया पहले ही आपको करके। अब यहाँ कुछ और आ रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन occurring in the lesson and find out the related describing word in if any। तो चलते हैं, ये कॉमन नाउन दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख रहे हैं। तो पीपल है तो जर्मनी पीपल है, अमेरिकन पीपल है, एक्सेट्रा, इस तरह से। टूरिस्ट की बात कर लिए तो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। एजेंट है तो एजेंट से एजेंसी बन गई है यहाँ। पर्सन है और यहाँ पे पर्सनैलिटी है, चलो देखते हैं। अमेरिकन है तो अमेरिकन का अमेरिकन ही रहेगा। मुगल है तो मुगल का मुगल ही रहेगा। जर्मन है तो जर्मन का जर्मन ही रहेगा। और गाइड है तो गाइडेड हो जाएगा यहाँ पे। कॉलीग है और इंडियन है तो इंडियन पीपल हो जाएगा। स्टाफ है तो स्टाफ मेंबर हो जाएगा। नेबर है तो नेबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। लास्ट में चलते हैं, यह है यूज द फॉलोइंग प्रोब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन। सो प्रोब क्या है, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। सो आंसर इज, मीनिंग देख लो पहले, वर्क इज क्विकली एंड इजली डन व्हेन मेनी पीपल हेल्प। सो आंसर यहाँ पे देना है आपको, completing the project work in one day was a huge task, but all the colleagues worked together and finished it before the stipulated time. Many hands had made the work light। So बहुत सारे हाथ जो है मिल करके कार्य को आसान बना देते हैं। अगर हाथ बहुत सारे मिल जाए बच्चों तो बहुत बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। इसका ये मीनिंग दिया हुआ है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। तो समाप्त होने के साथ ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें दबा करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत फायदा पहुंच सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।